اور آج فرائیڈے ہے اور نارملی ہم آج کے دن ڈفرینٹ ٹاسک کرتے ہیں، مگر بیکاز آف دا ڈے دیٹ از اباؤٹ ٹو کم وچ از مردوں کی عید، دا ڈے آف دا ڈیڈ which starts normally on the 1st of November to the 2nd of November، اور اس دن کو منایا جاتا ہے، اور ہم پڑھنا چاہتے ہیں کہ کلام میں اس دن کے بارے میں کچھ لکھا ہے کیا؟ جو ہمیں خداوند نے حکم دیے ان میں کچھ بھی ایسا حکم ہے جو ہمیں کرنا ہے اور ہم کر نہیں رہے، یا ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں؟ سو ہم ورسز سے پڑھیں گے، کلام میں سے پڑھیں گے، اور تھرو ورسز وی ول ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ واٹ دا ورڈ آف گاڈ از ٹیچنگ اس۔ آمین۔ ڈے آف دا ڈیڈ، مردوں کی عید، جو ہم لوگ سال با سال مناتے ہیں، کیا اس کے بارے میں ہمیں کلام سے اجازت ہے؟ کیا یہ عید کلام سے مقرر ہے؟ یہ کیا ہم کلام میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اس عید کو منانا ہے؟ کیا اس کے بارے میں کہیں پہ بھی کلام میں ذکر ہے؟ لیٹس انڈرسٹینڈ واٹ از دا ہسٹری آف دس ڈے، دا ڈے آف دا ڈیڈ، مردوں کی عید۔ اگر آپ اس ورڈ کو لکھیں ڈے آف دا ڈیڈ تو آپ کو پورا انفارمیشن آ جائے گا، وکیپیڈیا میں آ جائے گا، اس کی ہسٹری آ جائے گی دیٹ اٹ از اے ٹریڈیشنل میکسیکن ہالیڈے۔ ٹریڈیشن ہے، اٹ از ناٹ اسپرچل، اٹ از ٹریڈیشن جو دنیا نے، لوگوں نے بنایا۔ یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ تم نے سال میں یہ چیز کو منانا ہے۔ اب ریزن کیا ہے ان کا سیلیبریٹ کرنے کا؟ 2nd of November، کئی جگہوں میں، کئی ملکوں میں دے اسٹارٹ دا سیلیبریشن فرام 1st of November to 2nd of November۔ 1st November سے شروع ہو جاتی ہے سیلیبریشن ٹو دا 2nd of November۔ بٹ واٹ از دا بلیف بیہائنڈ اٹ، اور کیا یہ بلیف ہمارے کلام سے میچ کرتی ہے؟ کیا یہ بلیف ہمارے کلام میں ہے؟ آن دس ڈے ان کا بلیف ہے جو مناتے ہیں دا میکسیکن پیپل فرام میکسیکو، اٹ از بلیو دیٹ the souls of the dead people، جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کی جو اسپرٹ ہوتی ہیں، ان کی جو سول ہوتی ہیں، ٹو وزٹ دے فیملی ممبر، کہ ان کی جو سول ہوتی ہیں وہ فیملی ممبرس کو وزٹ کرنے آتی ہیں۔ مطلب جو مر گئے ہیں ان کی جو اسپرٹس ہوتی ہیں، ان کی سولز جو ہوتی ہیں، وہ گھر والوں کو ملنے آتی ہیں۔ دیٹس دا ریزن بیہائنڈ دس۔ اینڈ ڈو وی ہیو سچ بلیوز ان دا ورڈ آف گاڈ؟ ہمارا کلام کیا بولتا ہے؟ That's what we need to learn. We have to stop focusing on what the traditions are of other people. Without knowing the history of it, we add up. ہم اس realm کو، اس دروازے کو، غلط دروازوں کو اپنی زندگی میں کھول دیتے ہیں، اور ہم انوائٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، ان اسپرٹس کو جن کا اب دنیا میں کوئی کام نہیں، جسٹ tapping into the wrong realm. Praise the Lord. Let's learn from the word of God. The first reference that I'm going to read is Matti ki Anjeel, chapter 8 verse 21. Let's see what our master says. اور ایک شاگرد نے اس سے کہا، اے خداوند مجھے اجازت دے پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ آمین۔ وہ شاگرد تھا، یسوع کا شاگرد تھا، یسوع کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا جس نے یسوع کو فالو کرنے کا چوز کیا تھا۔ اس نے چوز کیا تھا کہ وہ یسوع کو فالو کرے۔ اور یہاں پر جب ایک منسٹری چل رہی ہے یسوع کی، یسوع کا امپورٹنٹ کام چل رہا ہے، یسوع ایک خدا کی مرضی، باپ کی مرضی پوری کرنے آیا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے باپ کی مرضی کو پریفرنس دیا، باپ کے کام کو، باپ کی منسٹری کو پریفرنس دیا۔ اور یہاں پر یہ یسوع کا جواب تھا، یہ یسوع کا جواب تھا۔ مگر ہمیں یاد رہے کہ شاگرد ایک کمٹمنٹ میں ہے یسوع کے ساتھ۔ سو اٹ از جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ جیزس ٹولڈ ہز ڈسائپل، جب اس نے اپنے باپ کو دفن کرنے کی بات کی کہ میں جا کے دفنا کر آ جاؤں، اور یسوع نے اس بات کو کیا کہا؟ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ آمین۔ فرینڈس، بک آف رومن چیپٹر 5 ورس 12، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے
गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। आमीन। इस वर्स से हमें पता चलता है कि जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, जो गुनाह था that just didn't come alone, it accompanied with death, उसने मौत को साथ लेकर आया। गुनाह के साथ मौत है, रूहानी मौत है और दुनियावी मौत है। हम रूहानी तौर पे तो मर जाते हैं, मगर जब दुनियावी तौर पे मरते हैं तो फिर जिस जगह पे जाते हैं वो जगह अबलीस के लिए तैयार की गई है, वो जगह हेल के लिए तैयार की गई है, वो अबलीस और उसके फॉलोअर्स के लिए तैयार की गई है। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। आमीन। गुनाह और मौत का एक रिश्ता है। गुनाह से हम मरते हैं, हमारी रूहानी मौत भी होती है, और जब हम दुनियावी तौर पे मरते हैं तो हम सही जगह पर नहीं जाते। तो हमारी मौत जब गुनाह के अंदर होती है तो हम दुनियावी तौर पे भी मर जाते हैं और रूहानी तौर पे भी मर जाते हैं। तो वो बस दुनिया में एक टाइम पास हो रहा होता है, कि और बाद में उस शरीर का, उस बॉडी को तो कीड़े खाएंगे, मगर वो स्पिरिट, वो सोल भी एक ऐसी जगह पे जाएगी जो अबलीस के लिए तैयार की गई है। प्रेज द लॉर्ड। रेफरेंस रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 13। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। आमीन। वो अपने लेबर से, उस मेहनत से जो दुनिया में रहते हुए करते हैं। कौन सी मेहनत? क्या काम पे जाना वो मेहनत? स्टडी करना वो मेहनत? कौन सी मेहनत की बात हो रही? वो मेहनत जो उनकी जद्दोजहद होती है, उनकी मेहनत होती है रास्तबाजी में चलने की। जब दुनिया सारी इस तरफ जा रही है और वो एक इंसान, वो रास्तबाज, सारी दुनिया एक तरफ और वो इंसान बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा होता है और वो खुदावन के रास्ते पे चल रहा होता है। उसके लिए मुश्किलें होती है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस रास्ते पे चलने के लिए। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। कौन आराम पाएंगे? जो खुदावंद में मरते हैं। और उनको कहा गया, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल, देयर वर्क विल फॉलो देम। जो हमने दुनिया में काम किए हैं, दैट विल फॉलो देम, उन मुर्दों को वो काम उनके फॉलो करेंगे। दैट विल टेक देम टू दैट प्लेस। वो आराम पाएंगे। आमीन। रेफरेंस हज़िकियल चैप्टर 18 वर्स 4। देख, सब जाने मेरी है, जैसे बाप की जान वैसे ही बेटे की जान भी मेरी है। यहां पे खुदावंद बता रहे हैं कि दोनों जानें मेरी हैं, बाप और बेटे दोनों की जानें मेरी हैं। नारास्तों की और रास्तबाजों की जानें किसकी हैं? खुदा की हैं। जो जान गुनाह करती है वो ही मरेगी, मगर जो गुनाह करेगी वो मरेगी। इवन दो कि जानें खुदा की हैं, बनाई उसने हैं, मगर जो गुनाह करेगी वो मरेगी। वो रूहानी तौर पे मरेगी और वो दुनियावी जिस्मानी तौर पे भी मरेगी, मतलब उसकी स्पिरिट भी मर जाएगी। आमीन। और वो मौत आसान मौत नहीं है। हमने उसको रेवलेशन में उस मौत को पढ़ा है। वो बहुत बहुत तकलीफ दे मौत है, बहुत तकलीफ दे मौत है, और खुदा उस मौत से सबको बचाए। आमीन। वास की किताब चैप्टर 12 वर्स 7। और खाक खाक से जा मिलेगी जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। आमीन। जो खाक में है वो खाक में जा मिलेगी जिस तरह आगे मिली हुई थी। पहले वो खाक ही थी जिसमें से बदन बना और उसमें खुदा ने रूह डाली। अब रूह वापस खुदा के पास चली जाएगी और खाक खाक में जा मिलेगी। आमीन।
और अगर हम इसको बुक ऑफ डैनियल में पढ़ते हैं, दानियल में चैप्टर 12 में पढ़ते हैं वर्स 2 में, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से भुतेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। आमीन। अब उनके कामों पे है कि उन्होंने कौन से काम किए, अब उनके कामों पे हैं कि उन्होंने कौन से काम किए। उस हिसाब से जब वो जागेंगे तो अपनी जजमेंट के डे पे अब जागेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वास की किताब चैप्टर 9 वर्स 5 to 6, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दा कुछ भी नहीं जानते, और उनके लिए वो कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही है। आमीन। यहाँ पे हम मुर्दों की ईद मना रहे हैं, मगर कलाम कहता है कि मुर्दे तो कुछ जानते ही नहीं, तो ईद काय के लिए मना रहे हैं? Why are we celebrating the death? जब यीशु ने कहा कि अपने मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, तू मेरे पीछे चल। If we are the followers of Christ, हमें यीशु के पीछे चलना है, और यहाँ पर हम मुर्दों की ईद मना रहे हैं। क्या कलाम हमें बताता है? क्योंकि कलाम कहता है क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दा कुछ भी नहीं जानते, और अब इनके लिए कुछ अजर नहीं, अब उनके लिए किसी बात का कोई अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही है। अब उनकी मोहब्बत और अदावत व हसद सब नेस्त हो गए, और ताअबद उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं। आमीन। अब उनका कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया, नेस्त हो गया, फिनिश हो गया। एक दफा जब जिस्म से रूह निकल जाए, हमारी स्पिरिट, हमारी सोल निकल जाए, तो बदन खाक में मिल जाता है, क्योंकि वो खाक से बना है, और अंदर जो रूह थी, जो जानती थी, अब वो जाएगी अपनी जजमेंट के लिए। आमीन। वास की किताब चैप्टर 9 वर्स 10, जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर मीन्स एज मच एज यू कैन, मकदूर भर कर, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत। आमीन। पाताल में ये सब कुछ नहीं है, जो हेल है, पाताल है, उसमें ये सब कुछ नहीं है। सो जो तेरा काम हाथ भर के करना चाहे उसे जितना करना है कर ले, क्योंकि पाताल में ये सब कुछ नहीं है, ना मंसूबे हैं, ना इल्म है, ना हिकमत है, कुछ भी नहीं है। आज हमारे पे चॉइसेस हैं, हमारे हाथ में अपने लिए चॉइसेस हैं कि हम कौन सा रोड लेते हैं, हम कौन सा पाथ लेते हैं। क्या हम उसके फॉलोअर्स हैं? जब हम यीशु को फॉलो करते हैं तो हम इन ट्रेडिशंस को, जो सो कॉल्ड मैक्सिकन ट्रेडिशन है, जो कि कलाम की नहीं है, हम उन बातों को फॉलो कैसे कर रहे हैं? हम अपने वक्त को वेस्ट क्यों कर रहे हैं, जो कि एक एक वक्त कीमती है? क्या कोई जान जानती है कि वो कब निकल जाएगी? क्या मालूम है हमें मौत के वक्त का? मगर हम मुर्दों की ईद मना रहे हैं, जब हमें अपनी मौत के वक्त का नहीं पता, हम उसके लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, मगर हम मुर्दों की ईद की तैयारी कर रहे हैं। 146 वर्स 4, उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, उसी दम उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। जितने मंसूबे बनाए हैं, अगर इंसान रात को मंसूबे बनाकर सोया और सुबह आंख ना खुले तो सारे मंसूबे फना, सब कुछ खत्म, बस उतना ही है। एक दफा जब जान निकली, कहानी खत्म। इट्स द एंड, इट्स द एंड। उसके बाद कोई सेलिब्रेशन नहीं होती है, ना किसी बात की, ना कोई मंसूबे होते हैं, ना किसी से कुछ करने से उस इंसान को फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उसने अपनी चॉइसेस ले ली थी कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। हर इंसान के पास चॉइसेस हैं, पीछे लोग बैठकर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 सैमुअल चैप्टर 12 वर्स 23 में मैं थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगी कि यहां पर दाऊद नबी ने जब हतीओरिया की बीवी ले ली कि अपनी बीवी बनाए, और जब उस औरत में से पहला बेटा हुआ, पहली औलाद हुई जो खुदा ने ले ली क्योंकि वो गुनाह से पैदा हुई, उसके बारे में जब वो मर गया तो हम पढ़ते हैं और सीखते हैं कि दाऊद नबी का रिप्लाई क्या था। पर अब तो वो मर गया, बस मैं किसके लिए रोज़ा रखूं? क्या मैं उसे लौटा सकता हूं?
मैं तो उसके पास जाऊंगा पर वो मेरे पास नहीं लौटेगा। आमीन। सो यहाँ पर दाऊद नबी उस बच्चे के रेफरेंस में बात कर रहे हैं जो अब मर गया, बस मैं किसके लिए रोजा रखूं, या मैं किसे लुटा तो नहीं ला सकता रोजा रखकर, या मैं कुछ कर तो नहीं सकता। अब तो यही होगा कि जब दाऊद नबी कह रहा है कि अब जब मैं मरूंगा तब मैं उसके पास जाऊंगा, मगर वो मेरे पास नहीं आ सकता। आमीन। एंड सो ईजली हम अपनी जिंदगियों के दरवाजों को, हम गलत दरवाजे खोल लेते हैं और इब्लीस को आने देते हैं कि आ और हमारी बेहतरीन चीजें ले जा। We give in so easily. We are tapping into wrong traditions. ना हमें उनके बारे में मालूम है, ना हिस्ट्री मालूम है। नाउ अब कुछ सेलिब्रेट करने से पहले, किसी रल में किसी गलत दरवाजे को खोलने से पहले या खटकाने से पहले, लर्न द हिस्ट्री। राइट नाउ हमारे हाथों में फोन है, जस्ट लर्न लिटिल बिट अबाउट इट। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। जो ईद हमें मनाने को कही गई है, जो कलाम की है, अगर क्या हमने कलाम को पूरे अपनाया है? अगर खुदा को अपनाया, मसीह को अपनाया, कलाम को पूरा नहीं अपनाया, तो हम आधे अधूरे हैं। खरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 14 में लिखा है, तू साल भर में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना। क्या हमें इन ईदों का मालूम है जो खुदा ने बोली है? हमें मालूम भी नहीं है। एज इन फॉर द रिस्पेक्ट भी नहीं मालूम, एज इन फॉर द नॉलेज भी नहीं मालूम। और ये कलाम हमारे घरों में पड़ रहा है और मिट्टी खा रहा है। ये खुदा का जिंदा कलाम मिट्टी खा रहा है। हमें अंदर कुछ नहीं मालूम, मगर हमें जरूर मालूम है कि हमें डे ऑफ द डेड मनाना है, हमें वैलेंटाइंस डे मनाना है, हमने बाकी सारे होली भी मनानी है, हमने सारे त्यौहार मनाने हैं। मगर जो त्यौहार खुदा ने बोला है वादों के साथ, नस्ल दर नस्ल बरकत के साथ, वो हमें नॉलेज भी नहीं है। हम सो कॉल्ड मसीह हैं अगर हमें कलाम की इन बातों को मालूम नहीं है। इट इज टाइम फॉर अस टू ओपन अप आवर आईज। किस दिन का वेट करें? क्या जान का मालूम है कि कब निकल जाएगी? सो हम दुनियादारी में इतने क्यों उलझ गए कि अपने कलाम को भूल गए और रवायतों को अपना लिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमें हिकमत दे, दनाई दे, यीशु नाम से अपने आप को, अपनी फैमिलीज को डिस्कनेक्ट करें गलत दरवाजों से, गलत चीजों से, गलत रवायतों से। क्योंकि इनका मानना है कि उस दिन जो वो स्पिरिट्स हैं, मर गई हैं, वो वापस उनको मिलने आती हैं, तो वो उनको वेलकम कर रहे होते हैं। उनकी अगर आप उनकी देखें, उनके बारे में पढ़ें अच्छे से, तो फोटो लगाई होती हैं, उसके आगे अगरबत्तियां और कैंडल्स जलाई होती हैं मुर्दों की, और उनके फ्रूट्स और खाने रखे हुए होते हैं। क्या मुर्दे आके वो खाना खाएंगे? क्या मुर्दे खाना खा सकते हैं? So it is time for us to open our eyes and live because He has blessed us to live. अगर हमने किसी को, कोई हमारा प्यारा चला गया, उसको याद करना है, so we can fast for them, or just a memory, a good memory that just bring that smile on our face. But why are we tapping into wrong doors and calling the spirits to our house and going? हम लोग खास कब्रिस्तान जाते हैं और ये सब कुछ करते हैं। हमें बिल्कुल आइडिया भी नहीं है उस कब्रिस्तान में, उस कब्र के नीचे और कितनी कब्रें दफनाई हैं, और उस कब्र पे और कितनी कब्रें हैं। Some of them, मैंने ऐसे केसेस सुने हैं कि वो बच्चियां गई हैं, बेटे गए हैं और पोजेस्ड होकर आए हैं, किसी को साथ लेकर आए, स्पिरिट्स को साथ लेकर आए कब्रिस्तान से। वो स्पिरिट्स उनको डिस्टर्ब करती हैं, उनके साथ गलत करती हैं, उनके साथ सही व्यवहार नहीं करती। क्या वो उनकी किसकी स्पिरिट? कोई स्पिरिट किसी की रिश्तेदार हुई फिर? सो इट इज टाइम टू ओपन आवर आईज। और हमने कलाम में पढ़ा है कि कितनी जगहों में लोग बीमारी में थे, तकलीफ में थे, और वो बदरू गिरफ्तार थे। यीशु ने उनको बदरू को निकाला। कहने को वो अंधा था, लंगड़ा था या गूंगा था, यीशु ने बोला बदरू को निकाला उसमें से। सो मीन्स ये बदरू हैं जो हम तो जाके उनको लेकर आ रहे हैं कि आओ, घर आओ। सो टाइम इज टू स्टॉप दिस, व्हाट इज नॉट रिटन।
and follow the word of God. उसने हमें commandments दिए, 10 commandment को 2 commandment में बताया है कि do these 2 and you will fulfill the rest of the 10. हमें उन 2 commandment को पूरा करना और उन 10 commandment को पूरा कर देते हैं. Let's all shift our focus to the word of God. And let's stop wasting our time. इब्लीस ने हमें दुनिया में उलझा दिया है, टेक्नोलॉजीज में, लोगों में, गलत रिश्तों में, गलत दोस्तों में. बाद में यही दोस्त धोखा दे जाते हैं जिनके लिए इतना झूठ सच हम करते हैं. बाद में यही लोग हमारे लिए मुश्किल ठोकर का बाइस हो जाते. तो हमें केयरफुल, उसने बोला है सांप की मानद होशियार और कबूतर की मानद भोले बने रहो. डव लाइक डव. प्रेज द लॉर्ड. खुदा बाप हमें हिकमत दे, दनाई दे. यीशु नाम से बाप जी, अगर गलती से जानबूझ के अनजाने में हमने कोई गलत दरवाजे, कोई गलत रल्स खोल दी हैं, तो बाप जी यीशु नाम से हम उन रल्स को बंद करते हैं अपनी जिंदगियों से, अपने घरों से, अपने खानदानों से. उन दरवाजों को बंद करते हैं. वी सील एंड वी प्लीड द ब्लड ऑफ क्राइस्ट कि कोई नापाकी, कोई गलत स्पिरिट, कोई गलत चीजें हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में, हमारे खानदानों में दाखिल होने ना पाए. यीशु नाम से लॉर्ड, बिकॉज हम खून खरीदे हैं, हम खून खरीदे हैं. In the name of Jesus, in the name of Jesus, amen.